So, good afternoon, everyone, and thanks for being here for an amazing workshop that we will be starting in next few minutes. So, the workshop is on the subject opportunities in travel journalism, and for that workshop, our today's guest is Ms. Khurshid Dinshaw. So, just to give a brief information about her, she is a double record holding freelance travel writer and content creator with bylines in BBC Wildlife, The Guardian, South China Morning Post, Forbes India, Travel and Leisure India and South Asia, Outlook Traveler, and Hindustan Times Punch. She has also edited a Singapore based bi monthly magazine for 4 years and has contributed till now to 12 titles of the Chicken Soup in India books. So I would like to request our HOD, Dr. Keshav Sate sir, and Ms. Khurshid Dinshaw to please come on the stage. I would also request Dr. Keshav Sate sir to kindly felicitate our guest for today. So one more thing is during the there will be a no separate Q&A session. If you guys have any questions, feel free to ask Khurshid ma'am in between. And also, I request all of you to keep this session interactive, considering the ma'am's overall explorations into the various parts of travel and also her experience in writing. I request all of you to understand most of it and ask ma'am if you have any queries. So, my introductions and all done, formalities done. Shall we start? Super. Who's a travel journalist? Nobody? What do we do? Nobody? What do you think we do? Perfect. That's what we do. So, that's the part of travel. And then, what about the journalism? We write. We write about our experiences. So that's what a travel journalist is all about. You travel, you experience, you explore, and then you write. Okay. Sounds fun? Sure? बोलने के लिए तो नहीं बोल रहे ना? Cool. So, travel journalism, do you think it's exciting? Okay. Do you think it's challenging? Why? मजे की बात है ना, आप तो घूम रहे हो और लिख रहे हो, उसमें क्या चैलेंज है? Tell me. Nobody? Okay. So, it is challenging. Yes, it's very, very challenging because you don't see this part. I mean, social media or when you're writing and all, you read all the fun part. You don't read behind the scenes part. So, we'll talk a bit about behind the scenes, like basically what travel journalism involves. And then we'll go to upcoming trends. All right? Yes? Okay, so there's a lot of responsibility that's attached to travel journalism because you got to report accurate facts, spellings. आप कहीं पे गए, suppose you've gone to Shanwarwada and you're going to report about it. You got to be very, very careful about what you're reporting. Authenticity, right? You can't make up your own stories and say, oh, in this year this happened, or your guide will tell you, ye ho gaya, wo ho gaya. You got to check. So authenticity is very important because there are thousands and lakhs of people who will be reading your stories. And it's not a one-time thing. It's a forever thing, right? If somebody wants to search for Shanwarwada, they'll be getting your information. So you got to be very, very careful and very responsible about what you're writing and what you're reporting. Yes? Okay. When you report, it needs to be non-biased. We are very conditioned. We have our own perceptions. We have our own thoughts. Our culture is a certain way, right? So sometimes what happens is that when we travel and we come across something that's not, I mean, we're not used to it. It's very different for us. We're like, ये क्या है? ये क्यों ऐसे बोलते हैं? ये क्यों ऐसे करते हैं? ये क्या पहन रहे हैं? ये क्या खा रहे हैं? Yes, no. Have you traveled? Anybody went out of Pune on the weekend? Where? Where? Who went to Mumbai? Okay, what? Anything did you see in Mumbai? Are wow, very good. How was it?
Okay. Oh, let's not talk about it then. Okay? So, non biased reporting. Why is that important? Because, like I said, when you're writing for your readers. You are not writing for yourself, right? You're not writing, oh, मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं तो सिर्फ इस पे लिखूंगा या इस पे लिखूंगी. It has to be what your readers want to read because you are helping them. Now, for example, Kala Ghoda Festival was okay. If before you went, somebody had written somewhere or you read somewhere कि काला घोड़ा फेस्टिवल पे don't have very high expectations for this year, would it have helped you? So non-biased authentic reporting. Yes, I'm going to mention an incident. So when I'm vegetarian. Any vegetarians here? बस बस इतने धीरे से क्यों हाथ आ रहे हैं मतलब are you why and is why this much only? Can we do this? Can we do this? Vegetarians better. Okay. So when I was in Sharjah, okay, they took us to a fish market. And so there were a lot of fishermen and all. And this one person, he shows one small exhibit. It was the beating heart of a fish. He had cut the fish and the heart was still beating. And he was showing it to us very proudly. Now, like I said, I'm a vegetarian. So for me, that was disturbing, right? Because I mean, एक तो तुमने जो कर दिया, but you're so proud कि you're showing that. But when you report, you can't report this. It needs to be non-biased. That's why I said your culture, your conditioning has to be put on one side when you do your reporting. Yes, no? Super. Now, your writing has to be very insightful and narrative. What does that mean? What do you mean by narrative writing? What do you mean by insightful writing? Anybody? Perfect. So, narrative is what you mentioned exactly that. You don't want to just put facts and figures like this happened, this happened, this happened. It's not a chronology. You have to engage your readers. You have to make them go to that place. You have to make them live what you have lived, but in a nice, non biased way. So, perfect. That is what narrative is. Well done. Insightful. I'm waiting. This side, somebody, nahi? Itne serious. Why everybody so serious? I don't understand. Travel is fun, na? No. उस पे भी कोई जवाब नहीं. Okay, travel is not fun. It's fun. Yes, so insightful is quite similar to narrative. It has to be, like I said, your readers need to engage in that article. They need to remember that article for a long time because we have an overload of information nowadays, right? There's writing, there's blogging, there's social media, there's so much happening. So for your article to stand out, it needs to be written in such a manner that your reader feels, that was a good article. वो मुझे याद है. Yes? Cool. Now, when you write, it's not just writing. You have to interview a lot of people. So, for example, there's that Kala Ghoda journey. Guys, stand up, please. Okay. When you went to Kala Ghoda, did you speak to anybody over there? Oh, which one? The tribal art, the metal art? तो आपने बात की ना उनसे? ओके, तो डू यू रियलाइज विदाउट रियलाइजिंग आप आधे ट्रैवल जर्नलिस्ट बन गए बिकॉज जब आपने उनसे बात की ओके यू लर्न अ लिटिल बिट अबाउट वो क्या कर रहे हैं. अच्छा ठीक है, वो कल्चर कनेक्शन हो गया कि छत्तीसगढ़ से आप हैं तो आपको बात करने में अच्छा लगा एंड ऑल. बट द थिंग इज के व्हेन यू स्पोक टू देम, you learnt about what they were doing.
they were happy कि हमारे से मतलब कोई interact कर रहा है, कोई बात कर रहा है, right? So that is what like I said, travel journalism is all about, the interactions. Yeah. वैसे what did they tell you about the art? Tell us all. Hmm. हाँ, मैं वो पूछने वाली थी, आप भी कुछ खरीदोगे तो नहीं, बिकॉज वो महंगा भी काफी है, राइट? वो मेटल आर्ट महंगा रहता है, वही महंगा रहता है, तो आपने उनको वो नहीं बोला कि मैं भी वही कर रहा हूँ जो वो लोग नहीं बोले? बट यू नो व्हाट, व्हाट्स योर नेम? ओके, आदित्य। इतना बड़ा नाम मैं आदित्य बुलाऊं, चलेगा? ठीक है। सो आदित्य, डू यू रियलाइज दैट आपने अग्रीड, आपने कुछ खरीदा नहीं, बट समवेयर आपने क्योंकि उनसे बात की, उनको अच्छा लगा, यू नो, आप दे फेल्ट कनेक्टेड टू यू, इसीलिए उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स आपको बताए। यस। तो मॉनेटरीली आपने कोई फायदा नहीं किया उनका, बट इमोशनली आपने उनका फायदा किया। या सो वील कम टू दैट एस्पेक्ट ऑल्सो ऑफ ट्रैवल जर्नलिज्म। ठीक है। कोई और कहीं पे, अच्छा वीकेंड पे नहीं गया, इस महीने कोई कहीं गया है, दिसंबर में कोई कहीं पे गया है? कोई भी नहीं। पूना से बाहर जाना किसी को पसंद नहीं है? पूना बहुत पसंद है। हाँ हाँ, स्टैंड अप, चालू हो जाओ। ओ, यू वेंट टू हम्पी, वेरी नाइस। हाँ चलो, कम ऑन, क्लैप क्लैप, कम ऑन, यस, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? यश। ओके यश, अपने क्लासमेट्स को बताओगे हम्पी में कुछ देखा या नहीं? खाया? ओके, बात की किसी से? एग्जैक्टली, तो टेल एवरीबडी अबाउट योर एक्सपीरियंस। आप कहाँ से, पूना से आप कहाँ पे गए ट्रेन में? ओके। वो कन्नड़ा में बात कर रहे थे। कितने घंटे का ट्रेन जर्नी था? 10 आवर्स। ठीक है, ओके। तो मतलब आप बार्गेनिंग तो कर नहीं सके, क्योंकि उन्होंने, उनकी अपनी सेटिंग चल रही थी वहाँ, उन्होंने जुगाड़ करके रखा था कि भाई हमारा लैंग्वेज का हमारे पास एडवांटेज है, तो हम तो इसका पूरा फायदा उठाएंगे। ठीक है, आगे बोलिए। हम्म, कितने लोग थे? ओके। ओके यश, कितने दिन गए थे? बस। ओके, कौन से महीने में गए थे? मौसम बहुत अच्छा था। ठीक है, आपने हम्पी क्यों डिसाइड किया? परफेक्ट है। आपका फेवरेट कौन सा था मॉन्यूमेंट? क्यों?
ओके, बादामी गए? क्या खाया वहाँ का? कुछ लोकल खाया? क्या खाया? अरे एक्सप्लेन करवा दो। मतलब वो क्या था? चावल के साथ वो बिसी बिल्ले भात खाया आपने? नहीं। हाँ, तो बिसी बिल्ले भात वेजिटेरियन है। विदाउट रियलाइजिंग इट, आपने तो ट्रैवल किया, दूसरा आपने एक कल्चर एक्सपीरियंस किया जो आपके कल्चर से अलग है, राइट? आपने लैंग्वेज बैरियर भी एक्सपीरियंस किया, जो ट्रैवल में बहुत बहुत कॉमन है। मतलब वो नंबर वन बैरियर होता है, ठीक है? उसके बाद आपने लोकल खाया, आपको नाम नहीं पता लेकिन एटलीस्ट आपने खाया, ठीक है? अब नेक्स्ट वैसे आप जाना कहाँ चाहते हैं? बनारस। वेरी नाइस। कौन नहीं जाना चाहता? कौन जा रहा है? ओ परफेक्ट, कहाँ जा रहे हो? 1 सेकेंड, पहले यश तुम्हारी बारी कंप्लीट कर लेते हैं। तुमने एटलीस्ट गट्स किए हैं भाई, खड़े तो हुए हो। नंबर 2 एक आदित्य, नंबर 1 एक, नंबर 2 कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। मुझे लग रहा है मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, वो भी पोडियम पे खड़ी रह के। अच्छा, सो व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी नाइस यश, बिकॉज हम्पी मैं भी गई हूँ। मैं हम्पी 3 बार गई हूँ और मैं गर्मी में गई थी तो मेरी तो बैंड बज गई थी। वो बहुत बहुत बेकार टाइम रहता है, बट वेरी नाइस जो तुम कर रहे हो। एंड प्लीज कंटिन्यू, बिकॉज तुम आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है ना तुम्हें? फिर तो तुम मुझे टिप्स दे दो। हाँ, दे दो ना। नहीं, नो, बट वेरी नाइस जो तुमने किया, एंड प्लीज कंटिन्यू इट, बिकॉज बिना रियलाइजिंग इट अगेन क्या होता है, यश, आप जब ट्रैवल करते हो ना, तो आप जिस तरीके से आपकी जो सोच है या जो आप मतलब आपके जो जो मिसकंसेप्शंस हैं या जो जो परसेप्शंस है, वो अपने आप चेंज होते हैं। अभी पूना में बैठ के बहुत अच्छा रहता है, अरे हम्पी बहुत बहुत खूबसूरत जगह है, बट आप गए हो तो आपको समझा है कि आपको समझ में आया है कि वहाँ के चैलेंजेस क्या है, राइट? आप अभी अभी सपोज कोई दूसरा है, आपको उसको बताना होगा, तो बिकॉज आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप बता सकते हो कि, एंड बिकॉज आपका कल्चर सेम है। सपोज आपका कोई फ्रेंड जा रहा है, आई होप कोई जाए जल्दी, मौसम अच्छा है फरवरी तक। सो क्या होता है कि आप उनके बता सकते हो बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, राइट? सो दैट इज व्हाट ट्रैवल इज ऑल अबाउट। आप खुद भी सीखते हो, आप दूसरों को भी सिखा सकते हो। ठीक। कोल्हापुर में क्या पसंद है? कोल्हापुर सबसे कोल्हापुर पूरा ही अच्छा, उसमें से क्या पसंद है ऐसा नहीं कर सकते आप। पूरा कोल्हापुर ही बहुत है। कोई और कोल्हापुर गया है? फेमस वहां का दलिया है, शाहू पैलेस है, शालिनी पैलेस है, चप्पल गली किसी को पता नहीं है। अपना कोल्हापुरी चप्पल गए हो? चप्पल गली दूध कट्टा गए हो? नहीं गए। एक्सप्लोर करना है, वापस जाने की जरूरत है, बट गुड आप गए हो, ठीक है? कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट, अच्छा हिंदी में बात करो, बेटर है कि आप लोगों के लिए पहले ही बोल देते ना तो मुझे रिएक्शन मिलता। ठीक है, कूल। सो ट्रैवल जर्नलिस्ट फोटोग्राफर्स भी होते हैं, हाँ या ना? क्यों? हाँ, फोटो जर्नलिस्ट, ट्रैवल जर्नलिस्ट फोटोग्राफर्स भी होते हैं, मतलब फोटो जर्नलिस्ट भी होते हैं। क्यों? आदित्य, तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, जवाब दे रहे हो मुझे, उसके लिए तालियां। अभी आदित्य के साथ कोई कंपटीशन नहीं करना चाहता? ओ माय गॉड, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ये ट्रैवल जर्नलिस्ट बन गया ना, तो पता नहीं ट्रैवल जर्नलिज्म का क्या हो जाएगा। मतलब इट विल बी वेरी गुड।
ट्राई तो करो ना कोई कंपटीशन देने का इस तरफ से। ठीक है, अंशु ने बात कर ली। आगे से आई वांट समबडी। ओके, नरेशन यू सेड। आगे मिडिल रो से कोई तो बात करे। आप टेंशन मत लो, वो ऐसे फेसेस हो गए ना। मैं आपको ये नहीं कर रही हूँ, बट ट्राई। ओके, व्हाई आर ट्रैवल जर्नलिस्ट फोटोग्राफर्स क्यों है? बेसिकली जब हम आर्टिकल्स लिखते हैं, राइट, जैसे आप एक जगह गए, आप बहुत एक्साइटेड हो, सब देख लिया, वापस आए, आधी चीजें याद नहीं है, आधे फैक्ट्स याद नहीं है। तो अगर आपने फोटोज लिए हैं, आपके रेफरेंस के लिए बहुत इजी हो जाता है। अभी जैसे यश ने हम्पी के फोटोज लिए, 10 साल तक वो फोटोज उसको रेफरेंस तक, एटलीस्ट इफ नॉट मोर, 10 साल तक तो उसको काम में आएगा। तो 5 साल के बाद वो भूल तो जाएगा ना, कि उसको सब याद रहता है। यश, तुम्हें सब याद रहता है? परफेक्ट। शायद तुम मेरे भाई हो, मुझे भी याद नहीं रहता, इसलिए मुझे इतने फोटो खींचने पड़ते हैं। तो द थिंग इज, अगर आप फोटो खींचोगे ना, तो आपको बहुत इजी पड़ जाता है। आप वो फोटो देख के आपको याद आता है, फिर आपको उसकी जो बैक स्टोरी है सब याद आता है। एंड ये तो आप आपके आर्टिकल के लिए फोटो खींचते हो। यस, यस तो जोर से बोल लो। ठीक है। दूसरा, ट्रैवल जर्नलिज्म में या ट्रैवल ब्लॉगिंग में आपको खुद अपने फोटोज लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि जब आप किसी पब्लिकेशन को वो सबमिट करते हो तो वो फोटोज मांगते हैं। वो भी आपका खून निचोड़ना चाहते हैं ना। आपको सिर्फ लिखाएंगे नहीं, आपको फोटोज भी ले, आपसे फोटो भी लेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पैसे नहीं देंगे, बट आपको करना पड़ता है। और आपका अगर खुद का व्लॉग है तो आपको तो फोटो लेने हैं कि नहीं लेने हैं? आपसे लिखोगे नहीं ना। आपको फोटोज पसंद है ना? इंस्टाग्राम किसी को पसंद है? तो बेसिकली इंस्टाग्राम सिर्फ फोटोज है ना, मोस्टली तो फोटोज है, उसके नीचे अग्री डिस्क्रिप्शन है एंड ऑल। बट आप तो फोटोज के लिए पहले देख रहे हो ना, कि आप डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ते हो। एग्जैक्टली तो इंस्टाग्राम इज फोटोग्राफी मोस्टली। तो या तो वही है कि फोटोज जो है ना, पढ़ते आजकल लोगों का जो है ना, मतलब पढ़ना थोड़ा बोरिंग भी हो गया है, राइट? फोटोज देखोगे, बढ़िया सा हरियाली है, पेड़ पेड़ पौधे जो भी है, नदियाँ पहाड़, देख के खुशी खुशी मिलती है ना। अब वही डिस्क्रिप्शन, बैठो बैठो, वेरी नाइस, वही डिस्क्रिप्शन एक पैराग्राफ में कौन पढ़ेगा कि ये पहाड़ ऐसा था, ये नदियाँ ऐसी थी? फोटो देख के सब पता चल जाता है ना। फोटो सेज 1,000 वर्ड्स। यस, यस, मुझे यस मिला। ठीक है। ट्रैवल जर्नलिज्म जो है वो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल है। क्यों? कैसे? ठीक है, गुड। परफेक्ट। व्हाट्स योर नेम? साक्षी। साक्षात परफेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, उसमें से कौन सा था? वेरी गुड। तुम्हारा नाम पूछ लूंगी बट याद नहीं रहेगा। वेरी गुड ओमकार, बैठो। और नॉलेज तो गेन कर लेते हैं, बट वो एक्साइटिंग हो जाता है। यहाँ पे लेक्चर में हम बैठे बैठे मैं तुम्हें ABC जो भी सिखा रही हूँ, बट अब आप ये सोचो, मैं अगर आपको फील्ड में लेके जाती, सपोज, मतलब नॉट लिटरली फील्ड, मैं नहीं कह रही आपको मैं खेत में लेके जाऊंगी, बट मैं आपको ऑन ग्राउंड लेके जाती, सपोज हम कहीं जाते, ठीक है, और हम ये एक्चुअली वहां पे करते ये क्लास, कि मैं आपको बताती क्या करना है, आप लोग एक्सप्लोर करते खुद और आगे मुझे बताते, और वी कुड डू एन इंटरैक्टिव सेशन लाइक दैट। तो वो बेटर होता नहीं होता? होता ना? इंडियन कल्चर भी वैसे ही है, बोलो बोलो इंडियन कल्चर के बारे में। तो अच्छी बात है। नो नो, सी, आप जब तक बात नहीं करोगे, आप ट्रैवल, मतलब ट्रैवल में कैसे होगा? नंबर 1 थिंग ऑफ ट्रैवल इज बात करना, इंटरेक्शन करना। बोलो।
में सिखाया गया था कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए वो बहुत बढ़िया रहता है कि उनको डायरेक्ट लाइव दिखाए कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ये कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या करते हैं। तो थोड़ा बहुत उधर भी। और इंडियन कल्चर में जैसे कि गुरुकुल सिखाना मतलब यही होता है कि प्रैक्टिकली उनको ज्यादा आगे बढ़ाना। तो वही थोड़ा सा जो इसमें ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं वो थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ते हैं। और उनकी फोटोग्राफी में मुझे भी बहुत लॉन्ग वेरी गुड टीचर बहुत तेज है तुम में मैं तो तेज यस दैट इज इट कि आप अच्छा फिर से वेरी गुड चलिए खड़े हो जाओ आज वेरी गुड मतलब मैं इंस्टाग्राम से लोग ज्यादा घूमने लगे मुझे ऐसा लगता है। मतलब जो रील पे देखते हैं ना तो ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। मतलब चलो यहाँ पे जाते हैं तो क्यूरियोसिटी जनरेट होती है ज्यादा। किसने बोला क्यूरियोसिटी जनरेट होती है अरे खड़े हो जाओ परफेक्ट परफेक्ट सही आंसर दे दो वेरी गुड यस बैठ जाओ अभी उसको बोल रहे दो हां बोलो तो मुझे ऐसा लगता है जब इंस्टा आया तब से ज्यादा लोग घूमने लगे। आई एग्री यस तो मैं भी घूमा हूँ। अच्छा तुमने इंस्टा देख के तुम घूमे हो हाँ अच्छा मतलब देवकुंड वाटरफॉल मतलब वो अभी जो बारिश आती है तो काफी जगह देवकुंड वाटरफॉल लोग ज्यादा जाते हैं रील देख के। वेरी गुड 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 अच्छा है आपकी तो मदद होती है क्योंकि आपको सीखने को मिलता है और दूसरी बात आप किसी और की भी मदद कर रहे हो क्योंकि आप उनको पैसे दे रहे हो ताकि वो दे कैन सपोर्ट देयर फैमिलीज क्योंकि ये जो छोटे जो ये जो मतलब छोटी जगहों में रहते हैं लाइक सपोज होम स्टे है या छोटे रेस्टोरेंट्स है वो सिर्फ इसी इनकम पे जीते हैं बिकॉज उनको और कहीं से कोई इनकम नहीं मिलती है। तो आप घूमोगे आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो वो अच्छी बात है। आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा लगेगा ना वेरी गुड ठीक है। तो फिजिकल इमोशनल और मेंटल समझ में आया पक्का कोई बोलेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं। आप कभी बोर नहीं हो सकते ट्रैवल जर्नलिज्म में यस नो पीयूष कुछ बोलना है नहीं जब रेडी हो तो बोलोगे एक बार तो बोलना है वेरी गुड बोर होते हैं नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं ये ओके स्टार्ट हाँ 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 ओके आप पुणे के बाद गए हो कहाँ गए हो मैं सोलापुर में रहता हूँ अच्छा तो बीजापुर तो आपको खाना पसंद है कि रीइन्वेंट आवर सेल्व्स तो वो एक मेंटल लेवल पे हो गया मेंटल इमोशनल और फिर वहाँ पे एक कनेक्ट बन जाता है हर एक जगह से कि इवन आफ्टर 5 or 10 years एक कोई तो चीज इमोशनली ऐसे याद रहेगी कि हाँ इधर गए थे तो वो एक इमोशनल टच हो जाता है एंड बिसाइड्स दिस ये सब करके पैसा मिलता है वो पैसा किसको मिल रहा है ग्रेविटी वो एक अलग ही टॉपिक है साक्षी अभी ना हम लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं राइट वो लेट्स नॉट गो टू दैट एस्पेक्ट उसके लिए कुछ और वी हैव अनदर सेशन इफ पॉसिबल बट बिकॉज़ दिस टू मच अभी अपकमिंग ट्रेंड्स में चालू ही नहीं किए हैं हेलो अपकमिंग ट्रेंड्स इन ट्रैवल जर्नलिज्म एंड ब्लॉगिंग मतलब 2024 में लोग क्यों घूमने वाले हैं नहीं कोई क्यों घूमे ना घर पे बैठे ओह बाय गॉड ऐसे जवाब दोगे ना तो मैं शर्म से डूब जाऊंगी रील बनाने के लिए तो ठीक है वो उनका बिजनेस हो गया लेकिन आप जैसे लोग क्यों आप भी रील बनाने के लिए घूम रहे हो अपने किसी के लिए नहीं मतलब अपने इसके लिए नहीं घूम रहे हो
हाँ हाँ, वेरी गुड। आपने एक 2024 की ट्रेंड बता दी है। पता है वो क्या है? नहीं, रील बनाना नहीं। रिलीजियस टूरिज्म बहुत टाइम से चल रहा है। आपके माता पिता भी मंदिर जाते हैं, राइट? रिलीजियस पिलग्रिमेज टूरिज्म नहीं, वो पहले से बहुत टाइम से चल रहा है। मैं इस साल क्या कॉपी करते हैं? कॉपी टूरिज्म, कंटेंट कॉपी टूरिज्म करते हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब दूसरे लोग गए हैं वहां पे, आपको देख के आपकी चाह होना कि मैं भी वहां जाऊं और मैं भी वही फोटो, ये एक्चुअली ऐसा है कि नहीं, या मुझे भी ये जगह देखनी है या नहीं, इस ट्रेंड को क्या कहते हैं मैं बताऊं? आई थिंक जब मैं क्लास जाऊं छोड़ूंगी ना, तब सबसे बड़ा यस होएगा। ओके, सो इट्स कॉल्ड सेट जेटिंग। सेट, SET, सेट जेटिंग, JETTING, सेट जेटिंग। इसका मतलब है आप एक जगह पे ट्रैवल कर रहे हो जहां पे मूवीज या टीवी सीरियल्स की शूटिंग हुई है। आपका यू आर ऑल्सो एन ऑफ शूट, मतलब आपने जो बोला ना रील्स भी एक तरीके का है, बट मोस्टली अब लाइक सपोज कोई, अभी आप बोलोगे इंस्टाग्राम पे कौन नहीं है, सम पीपल जो इंस्टाग्राम पे नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं रहता, जो पैसे बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो इंस्टाग्राम शायद ना देखे, ठीक है, उनके पास बहुत पैसा रहता है, पर उनको वो जगह जानी है। आपको कहीं जाना है जहाँ पे कोई मूवी शूट हुई हो? हैदराबाद, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद, किसको जाना है? तो आप जाना चाहते हो? हाँ, they are not into very western things. उनका ही ट्रेडिशनल कल्चर सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब उसी में उनकी ग्रोथ देख रहे हैं। अच्छा, how did you come to know about the Northeast? आपने कहीं पे फोटो देखे, आपने कुछ पढ़ा? पढ़ा है मैंने, मतलब not exactly like through reels and something. Exactly. ठीक है, तो क्योंकि आपने किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया, आपकी क्यूरियोसिटी कि ये कौन सी जगह है, ये क्या खा रहे हैं, ये कैसे पहनते हैं, इनके फेस्टिवल्स क्या है, आपकी जगह, राइट? और आप जाना चाहते हो, ठीक है? सो दैट्स सेट जेटिंग इन अ वे, ठीक है? मूवीज, किसी ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखा है? नहीं देखा? अच्छा, कोई भी पिक्चर जिसमें टाइगर मूवी देखे? एक था टाइगर देखा है? उसमें अलग अलग लोकेशंस में टाइगर जाके पता नहीं क्या क्या कर रहा है, अच्छा लगा? टाइगर तो ठीक है, बट वो लोकेशंस देखे कि नहीं देखे? ओके, तो कुछ अलग आपकी कोई मूवीज है जो आपको पसंद है जिसमें कुछ मेरे को कराची जाना है। मतलब उसका रीजन है उसके पीछे, क्योंकि कराची के दो आर्टिस्ट है यश करके, तो वो लोग अपने म्यूजिक में अपने शहर को बहुत रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो उनके म्यूजिक के कारण पर कराची जाना है। आदित्य वैसे इंडिया में भी बहुत बढ़िया म्यूजिशियन है ना? हाँ, मैं एक्चुअली बैक म्यूजिशियन हूं ना, तो वो बहुत अच्छा म्यूजिक बनाते हैं। अच्छा, तुम्हारा कनेक्ट उनसे ज्यादा हो गया। पीयूष, आपको कहीं जाना है? एक बता दो। बोला तो क्या बोला आपने? वेरी गुड, बाय। I have been fascinated from the childhood. न्यूयॉर्क से क्यों? What is there in New York? What has fascinated you? Just the timeline, just the skyline. पहले तो aesthetics and then the culture over there, और वहाँ का जो universities and everything, the student culture that they have there. So I just want to explore it once in my life. देखना है जाकर. That is good. I hope you do. Welcome. So like I said, movies देख के आपकी कोई मूवी है जो आपको पसंद है, या कोई जगह है जो कोई मूवी या टीवी सीरियल देख के अच्छा लगा? मैं काशी रांझना मूवी है। कौन सी मूवी है? रांझना देख के काशी बनारस। ओके, और उनका क्या अच्छा लगता है? कौन सी तुमने हाथ रेस अभी तो मेरा डैड ऐसे ही जा रहा है? दिल चाहता है। दिल चाहता है। कौन सा? गोवा?
ये जगह आई लाइक दैट मूवी। क्या बढ़िया मूवी है, क्या लोकेशन है, ऐसी कौन सी जगह है? मनाली, very nice। और किसी को कोई जगह पसंद है? कोई, मैं नहीं बोल रही अभी के अभी जाओ, पर कोई तो जगह होगी ना जो जहाँ जाना चाहते हो। नहीं, हाँ बोलो। बाइक राइड। लद्दाख is my favorite region in India. Very nice. बैठो। और कोई कहीं जाना चाहता है खाने के लिए? खाने का पता है कुछ? खाना पसंद नहीं है किसी को? पसंद है? क्या पसंद है? क्या पसंद है? कौन सा स्ट्रीट फूड पसंद है? बोलो। कौन सा डिश के नाम तो बोलो। पूना में कहाँ जाते हो? पूना में कहाँ जाते हो समोसा खाने? घर पे खा लेते हो? घर पे खा लेते हो? हॉस्टल में रहते हो? ओके, तो दैट मेरा दिल से रिस्पेक्ट। हॉस्टल में रहने के लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे दूर। तुम ट्रैवल से भी आगे बढ़ चुके हो। यस, किसी को Q&A है? बिकॉज़ वी हैव टू डू लाइक अ Q&A। हाँ तेजस, अच्छा सा क्वेश्चन पूछना, इजी वाला पूछना। जैसे आपने मास्टर शेफ का थोड़ा सा बताया ना कलमरे के लिए, तो मास्टर शेफ रविंद्र बरार करके उसने दुबई में दुबई में अभी रेस्टोरेंट कश्मीर करके, तो उसका मीनिंग जो है ना कश्मीर टू कन्याकुमारी है। तो उसमें सब प्रकार के आपको इंडियन फूड जो नेशन वाइज है, सॉरी जो स्टेट वाइज है, वो पूरे मिल जाएंगे। तो आपको जब कलमरी टूरिज्म तो बहुत इंटरेस्ट है उसके लिए। तो आप क्या है उसके रेस्टोरेंट का नाम? कशकन। मैंने वो YouTube वीडियो देखा है। आपने देखा है? देखा है पर वीडियो। अब ऑब्वियसली रेस्टोरेंट मैं भी नहीं गई हूँ, इसके लिए मुझे बहुत पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। और आप लोग कॉफी भी करोगे तो कैसा होगा? मुझे तो पैसे चाहिए ना कहीं जाने के लिए। तो बट वेरी नाइस तेजस, बिकॉज ये जो रणवीर ब्रा ने खोला है, ये जो रेस्टोरेंट है, इसमें आप अगर आपने इसकी किचन देखी है तो किचन में जो बनाने के जो बर्तन है वो इसने इंडिया से स्पेशली इंपोर्ट किए हैं। यू नो वो बड़े बड़े जो हमारे पुराने जमाने में वो बड़े बड़े जो बर्तन इतने बड़े आते थे ना, वो इंपोर्ट किए हैं। और वो जो स्टाइल भी इसका है जैसे तंदूरी बनाने का है, और जैसे हमारे जो रहते हैं ना अपने तंदूरी साइड पे घर पे नहीं, वो रास्ते के साइड पे ढाबा के पास वो बड़े बड़े ईंट से बने हुए ऐसे वाले, और आप ऐसे ऐसे खाओ, ऐसे ऐसे करो, चपाती निकालो, रोटी निकालो गर्मा गरम, उसमें घी डालो, उसमें बटर डालो, सेट हो ना? वेरी गुड। एनीबडी Q&A में किसी को? यस, ओ फर्स्ट टाइम, टेल मी। I have a question for you. आप कहाँ से हैं और आपका फेवरेट फूड क्या है? मैं पुणे से ही हूँ। पुणे से ही है? पुणे से ही हूँ। पुणे का हूँ। बट मैं पुणे से हूँ। बट the thing is कि मेरी upbringing, बैठो, what's your name? अथर्व। Okay. But मेरा education, मेरा upbringing, मेरा schooling, मेरा everything all over India हुआ है, क्योंकि डैड आर्मी में थे। तो मैं बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडिया हूँ। उन्हीं का बाय डिफॉल्ट हूँ, पर बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडिया हूँ। तो मैंने बहुत स्कूल चेंज किए हैं, मैं अलग अलग जगहों में रही हूँ। कुछ जगहों में मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं बने, मैं बहुत रोती थी। और या सो आई एम फ्रॉम पुणे, और मेरा फेवरेट फूड सुशी। इसलिए मैं जापान जाऊंगी उसके साथ। सुशी। No, you have vegetarian sushi. You have vegetarian Anshu, right? Anshu, right? That's what I said, Anshu. You have vegetarian sushi. They make it out of sticky rice. हाँ, उनका sushi के लिए एक अलग special rice होता है। आपका सादा rice नहीं बना सकते, because वो उसको चिपकने के लिए it's a sticky rice. तो वो rice रहता है, उसके अंदर की जो filling रहती है,
ये हॉस्टल है। इंद्राणी राइस किसने बोला? ठीक है, there's no problem, see at least कोई बोल रहा है ना, जब नहीं पता है तो ठीक है। इंद्राणी राइस से नहीं बनेगा, बिकॉज इंद्राणी राइस जो उनका जो स्पेशल राइस होता है ना, आपको ये समझना है सुशी जापान से है, राइट? तो जापान में अनफॉर्चुनेटली हमारा राइस मिलता नहीं, हमारे जो वैरायटीज है ना वो वहाँ पे मिलती नहीं है, तो उनको मेक डू करना पड़ता है, जो उनके पास है ना उसी से बनाते हैं। तो उनका राइस बहुत चिपकू सा राइस रहता है, ठीक है, और अंदर की जो फिलिंग होती है ना उसमें क्यूकम्बर हो जाता है, उसमें गाजर हो जाता है, नो वसाबी साइड में सर्व करते हैं। सुशी में कभी वसाबी नहीं डालते, वो साइड में अकम्पनीमेंट होता है। वसाबी ये उसका एक्सप्रेशन ऐसा था, वसाबी ऐसा ही रहता है, मुझे भी पसंद नहीं है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। इंद्राणी राइस से क्या बनता है ये आप लोग थोड़ा रिसर्च करके खुद ही बता देना, मैं आपको बता देना, बिकॉज़ मैं आई विल नॉट नो। यस एनी यस I have just question from my end. So के यारो पहले तालियां को आलोक सर। So when you have your light on it, Yes. what is your usual approach towards visiting? Because I'm sure in a certain way you have to prepare for Yes. writing it later on. Yes. So how do you approach that style? So Alok, it depends from location to location. We are talking to topic. अच्छा, she is speaking Hindi, so they listen. Yeah. हाँ, कोई सुनने की कोशिश करेगा या इंटरेस्ट है? आलोक सर ने क्या पूछा? मैं बोल दूँ? हाँ। ओके, तो आलोक सर ने पूछा कि आप जब जगह जाते हो, ठीक है, और आपको वापस आके लिखना पड़ता है, तो आप कैसे प्रिपेयर करते हो? ठीक है, दैट्स योर टॉपिक, राइट? ठीक है। सो अलग अलग लोकेशन में अलग अलग टॉपिक चेंज करना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई सेड ट्रैवल राइटिंग बहुत चैलेंजिंग है। एक जगह के खाने के बारे में लिख लिया, लोकेशन एंड टॉपिक चेंजेस, मतलब वो लोकेशन के हिसाब से आपका टॉपिक हमेशा चेंज होता रहता है, बिकॉज चैलेंज ये रहता है कि आपको ऐसा कुछ लिखना है जो लोगों को नहीं पता है। रील्स तो बहुत इजी बन जाते हैं, आप पूना में भी हजारों रील्स बना लोगे, लेकिन आपको अगर किसी को कुछ सबमिट करना है, सपोज आपको कोई पब्लिकेशन को कुछ लिखना है, तो उनको आपके रीडर्स को ऑलरेडी सब पता है, तो वो क्यों आपका आर्टिकल पढ़ेंगे? आप मतलब पूना में ये सब XYZ सबको पता है, पूना दर्शन में क्या क्या देखने को मिलता है, पूना के जो भी है व्हाटएवर इट इज, सब पता है। तो आपका स्पेशल क्या है? आप वो आपका लेंगे ही क्यों? आपका आर्टिकल ही क्यों लेंगे? तो Alok, Mozambique, the story I did was vegetarian food in Mozambique, local traditional food. एंड उसका ये चैलेंज था बिकॉज मोजाम्बिक अफ्रीका में है, ठीक है, एंड मोजाम्बिक का खाना आइलैंड में बहुत सारे आइलैंड्स हैं मोजाम्बिक में, तो उनका खाना फिश और सी फूड रहता है, 95% उनका खाना वही है। तो मेरा टॉपिक इसलिए यही था कि मेरे जैसा कोई जाएगा तो वो क्या खाएगा, और मेरे जैसा कोई जाएगा और जिसको ट्रेडिशनल खाना है वो क्या खा सकता है, ठीक है। अभी हमारे पूना में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वहाँ पे 95% अगर आपका खाना सी फूड है और उनको कुछ पता नहीं है डिफरेंट करना, तो चैलेंजिंग ये हो जाता है कि उनको ये बोलना कि मुझे कुछ अलग चाहिए। तो पहले उनकी बैंड बज जाती है बिकॉज उनको पता ही नहीं है, उनका ट्रेडिशन अलग ही है। फिर आपकी बैंड बज जाती है क्योंकि उन्होंने जो बनाया आपको पहले वो समझना है, आपको उसको को खाना है, और फिर आपको उसको ऐसे एक्सप्लेन करना है आपके रीडर्स को इन अ वे दैट दे अंडरस्टैंड एंड दे वांट टू गो। तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। ये हंसना वसना सब ठीक है, जो बिहाइंड द सीन्स लाइक आई सेड होता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो दैट्स व्हाट आई डिड फॉर मोजाम्बिक। सो every destination it's a different thing, Alok. It cannot be the same thing because like I said, if I was अगर मैं पूना पे लिख रही थी, I cannot write on food because सबको खाना पता है। I cannot write on the attractions because सबको पता है। तो then the challenge is क्या लिखे।
all the time, all the time. Sometimes every edition they change. Sometimes they have certain sections. अब वो section नहीं चल रहा तो वो निकाल देते हैं. They just take it out. A new section. So like I said, आप travel journalism में you are never bored and you are never relaxed also, because आपको हमेशा you have to upgrade, you have to figure out कि अब नया क्या करना है, नया क्या लिखना है, मेरे readers को मैं क्या दे सकती हूँ. So it's like that. So for BBC my article was it was Sri Lanka में. There is Sri Lanka में there is a town. किसी को इंटरेस्ट है? ओके, तो श्रीलंका में एक छोटी सी जगह है जहाँ पे वो आई थिंक 7 स्पीशीज ऑफ टर्टल्स है दुनिया में. वहाँ पे 4 या 5 आती है, जो बहुत बड़ी बात है. तो वो बीच पे आती है. तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उनके अंडे जमा करते हैं, क्योंकि टर्टल्स का सर्वाइविंग रेट इज वेरी वेरी लो. आई थिंक टर्टल्स के जो हैचलिंग्स रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, 1000 में से सिर्फ 1 जी सकता है. उतना बेकार उनका रेट है, बिकॉज उनके प्रीडेटर्स बहुत होते हैं. बीच पे डॉग्स रहते हैं, बर्ड्स अंडे उठा लेते हैं. पीपल दे लाइक टू टेक द एग्स, आइदर वो उसे खाते हैं या वो उसे बेचते हैं. अब तुमने एक्सप्रेशन किया, खाते हैं. हमारा कल्चर डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है. उनके पास पैसे नहीं है, वो बहुत गरीब है, तो वो कैसे जिएंगे? जो उन्हें ऑप्शन मिलता है वो कर सकते हैं. इंडिया में इन सर्टेन स्टेट्स वो डॉग मीट खाते हैं. आप बोलोगे ओह माय गॉड, कुत्ते को कौन खाता है? वहाँ पे कुछ उगा नहीं सकते हैं. द नॉर्थ ईस्ट इन नागालैंड, they sell the dog meat in the market because they can't grow anything. What will they eat? So unless you go, you don't learn. So anyway, so the thing was, so these eggs, there is one family, just a family. It's वो अपने मतलब they are not doing it for any monetary benefit. उनको they want to preserve the turtles. तो वो अंडे जमा करते हैं, उसे सैंड के नीचे एक उनका छोटा सा उनका सेंटर बना है. सैंड में वो उसे दबाते हैं स्पेशल टेम्परेचर के लिए, एंड देन वो फिर ताकि वो उनका सर्वाइवल रेट थोड़ा इम्प्रूव हो सके, ताकि एटलीस्ट वो बच्चे पैदा हो. फिर वो बच्चे पैदा होते हैं और फिर वो उसे ले जाके इंडियन ओशन में बहा देते हैं, ताकि वो बच्चा जहाँ से आया है वहाँ पे जा सके. एंड आपको ये पता नहीं होगा, बट जो मदर टर्टल है वो एक बार अंडे देती है, वो वापस कभी नहीं आती. उसके बच्चे वो लावारिस है, वो उन्हें खुद ही उनका जुगाड़ करना पड़ता है. तो माई स्टोरी वॉज दिस, आलोक. सो आई वेंट टू दैट टाउन. सो यू आस्क्ड मी ना, सो आई सेड लोकेशन वाइज द चैलेंज इज द टॉपिक हैज टू चेंज. सो फॉर BBC I wrote how I visited this town and how I saw, basically I actually saw the babies come out from the sand. We picked up 4 babies in a bucket of salt sea water. So the same water, we took it to the ocean, and we had to wait because again the birds had to leave. Okay, so it has to be after dusk. So after dusk, or when it was dusk, then we released the turtle, and I saw the turtle go into the water, and I was hoping ke ye bach jaye. So that was my topic. So I said location wise topic changes. So yes, that's it. There is a lot in travel. मतलब like I said, travel में इतना है कि मैं खुद बोर नहीं हो सकती. Okay, so writing aspects you already, मतलब writing तो वो covered है आपके course में जो mass comm कर रहे हैं. Hospitality वाले भी थोड़ा इधर उधर सीख जाएंगे अपने दोस्तों के साथ. So I'll not go into the technicals of writing, but अगर आपको ट्रैवल जर्नलिज्म करना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको घूमना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट तो दिखाना पड़ेगा. अगर आप कहीं जाओगे नहीं तो आप क्या मतलब. अब उसने मुझे पूछा छत्तीसगढ़ के बारे में, मेरे पास जवाब ही नहीं था क्योंकि मैं गई नहीं हूँ, मैं बोलूँ क्या. तो ट्रैवल जर्नलिस्ट कैसे बनोगे जब तक आप ट्रैवल नहीं करोगे. अच्छा, मैं नहीं बोल रही आउट ऑफ पूना ही ट्रैवल कर लो, विद इन पूना घूम लो. वीकेंड्स है, राइट. प्लान बना लो ये दोस्तों के साथ, चलो यहाँ पे चले जाएंगे, वहाँ पे चले जाएंगे. आप
हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, बट अपने सिटी में भी इतना सब है खाने के लिए या पीने के लिए या देखने के लिए. थोड़ा बहुत अगर हम लोग एफर्ट कर लेंगे तो अपने आप इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा. एक जगह गए, अच्छा लगा, अच्छा चलो दूसरा प्लान बनाते हैं. कुछ खाया, पसंद आया, नहीं पसंद आया, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट किया तो, एटलीस्ट टेस्ट तो किया, तो एफर्ट तो किया. घर बैठे बैठे क्या सीखोगे? जितना आता है उतना ही सीखोगे. थोड़ा घूम लो, अपना सिटी घूम लो. Thank you, Khurshid ma'am. So, if any of you have any particular question about, let's say, writing or traveling, the experience you want to share, learn from ma'am, then you can get in touch with her. I think she has given her Instagram ID. So you can get in touch with her. Yeah, on her website as well. Thank you very much, everyone.